Bismillahirrahmanirrahim. We shall discuss about gym technique and when we discuss about general characteristics of genus Clostridium, then the Clostridia or basically gram-positive breeding anaerobic bacilli species are saprophytes that normal what composing plant and matter. They play an important function such as Clostridium perfringens and Clostridium सर आपकी आवाज नहीं आ रही। spores. Some such as Clostridium perfringens and Clostridium sporogenes are commensal of the animal and human death of the host. These organisms and other members of the intestinal flora rapidly invade the blood and tissue and initiate the decomposition of the carbs. The genus has undergone a major taxonomic revision, but this has been little impact on Clostridia of medical significance and the pathogenic species of इट्स मेन के जो हमारे पास क्लस्टीरियम है ये जो जीनस है इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे स्पीशीज और ये जो मेंबर्स हैं क्लस्टीरियम के वो ग्राम पॉजिटिव हैं और स्पॉट फाउंडेशन के दे स्पोर ये दे स्पोर्स जो होते हैं उनको ये क्या करते हैं फॉर्म करते हैं इसके साथ ये एनएरोबिक हैं ये इनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं होती इसलिए सैप्रोफाइट्स हैं और इनमें से कुछ स्पीशीज जो हैं वो
पीपीटी शो हो रही है आपको? स्टूडेंट्स पीपीटी शो हो रही है आपको? नो सर। अभी शो हो रही है? यस सर, शो हो गई अब। Yes. Next is Clostridium species. There are different type of species that are present in genus Clostridium, and one of the different species is called Clostridium tetani, that cause tetanus in humans, and other species is called Clostridium botulinum or Clostridium botulinum जो है botulism cause करती है, इसके बारे में भी हम, and the third species is called Clostridium and of bird, and when are dead, then animals are dead, then these species invade the tissue, blood, and decompose. And Clostridium differentiates and Clostridium novii, the against gangrene in humans and other animals, and Clostridium difficile type of infection. So we can say that different type of venus species are very harmful, and they can just and other animals as well. And main topic of today's discussion is Clostridium tetani, and Clostridium tetani bacilli is bacilli treats slender gram-positive bacteria, and the web terminal spore gives the organism the appearance of a drumstick with large round end, and it is an obligate anaerobe that grows well in both. It means कि ये सर्वाइव नहीं कर सकता, और सर आपकी आवाज नहीं आ रही। इसको अपनी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, और इसको आप ब्रॉथ मीडियम के अंदर इसको आप effectively क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं. And when they grow on enriched blood agar, they produces a thin spread of film, and the spores of Clostridium tetani are highly resistant, but the degree of resistance differ with different strains. It means कि जो स्पोर्स हैं क्लस्ट्रीडियम टैटनी के, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं, लेकिन जो इनकी रेजिस्टेंस की जो इनकी सलाहियत है वो डिफरेंट स्ट्रेंस के अंदर इनकी जो सलाहियत है वो डिफरेंट स्ट्रेंस के अंदर क्या है, वो डिफरेंट है. And spores of some strands resist boiling in water for up to 3 hours, and they may resist dry heat at 160 degrees centigrade for 1 hour. Normally, most of the bacteria died at 160 degrees centigrade temperature, but they may resist dry heat at 160 degrees centigrade for almost 1 hour, and they are and 5% phenol for 2 weeks or more. Iodine 1% water is said to kill the spores. So we can say that normally the spores of आवाज आ रही है आपको? पहले नहीं आ रही, अब आ रही है।
पहले किसी ने माइक ऑफ कर दिया था आप में से। Anyhow, as in cancer gangrene, the germination of spores and their outgrowth depend upon reduced oxygen tension in devitalized tissue and non-viable material in a wound. Normally इनको मैंने आपको बताया कि ये एनरोब हैं और जो है इनको ऐसा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है और नॉर्मली जब बॉडी के अंदर कोई टिश्यू डैमेज होगा जहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। When infection occurs, often assisted by the simultaneous growth of facultative and aerobic organism in a mixed inoculum, the tetanus bacilli remains strictly localized, but tetanus toxin is elaborated and diffuses into different parts. And toxin is the major characteristics of this Clostridium genus, and the different species of Clostridium produce toxins that have some have neurotoxic effects, some have effect on soft tissues, and some have effect on enterotoxin parts. The toxin of Clostridium tetani produces an oxygen labile tetrolysin, but टेटनोस्पर्म इज द मेन पैथोजेनिक प्रोडक्ट। इट्स मेन जो क्लस्ट्रीडियम टेटनी है ये 2 टाइप ऑफ टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है, एक को हम टेटनोलाइसिन कहते हैं और जो सेकंड टॉक्सिन है जो इसका इम्पोर्टेंट टॉक्सिन है वो उसको हम टेटनोस्पर्मिन कहते हैं, जो उसका मेन पैथोजेनिक प्रोडक्ट है जिसकी वजह से ये ज़्यादातर डैमेज होस्ट के अंदर क्या करता है वो कॉज करता है। Most strains produced, some strains are highly teratogenic and most strands produce demonstrable टॉक्सिन आफ्टर कल्चरिंग ब्रॉथ फॉर फ्यू वीक्स। इस मीन कि अगर आप इनको ब्रॉथ कल्चर के लिए कुछ डेज के लिए आप इनको ग्रो करवाएंगे तो फिर क्या करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टॉक्सिन को क्या करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे। The toxin encoding the neurotoxin is located on a plasmid. It's mean कि जो Clostridium tetani है जो इनका जीन न्यूरोटॉक्सिन को कोड करता है वो प्लाज्मिड के ऊपर मौजूद है and the plasmid the toxin is synthesized as a single polypeptide with a molecular weight of 150,000 Dalton, which undergoes post translation cleavage into heavy chain and light chain linked by a disulfide bond. It's mean कि जो इनके अंदर टॉक्सिन है वो प्लाज्मिड कोड करेगा और जो टॉक्सिन कोड होगा जो प्रोटीन इन नेचर है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर कंसिस्ट करता है और उसका जो वेट होता है वो 150,000 डाल्टन होगा। और जब ये प्रोटीन बन जाती है तो फिर इसके अंदर जो है ना ये पोस्ट ट्रांसलेशन क्लीवेज होगी और उसके बाद उसकी एक हैवी चेन और एक लाइट चेन बनेगी जो लिंक्ड होगी डाइसल्फाइड बॉन्ड की। The lethal dose for a mouse of pure tetanus is 0.001 microgram. It means it is highly toxic and it is toxic to human as well and various animals only when injected, not taken orally. जो क्लस्ट्रीडियम टेटनी की जो टेटनोस्पाज्मिन जो उसका टॉक्सिन है जो मेनली न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट को शो करता है तो उसकी बहुत कम कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल जो हम 0.001 माइक्रोग्राम जो है कंसंट्रेशन जो इसकी अगर आप किसी माइस को देंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, वो डेथ हो जाएगी। तो इतना कम अमाउंट के अंदर ये इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, लेकिन ह्यूमंस के अंदर जब आप इसको ओरली लेंगे तो इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है जब तक आप इसको इंजेक्ट नहीं करेंगे। तो जब ह्यूमन के अंदर इसको इंजेक्ट करेंगे तब ये अपना इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। अगर आप इसको इंजेक्ट नहीं करेंगे तो फिर जो है ये अपना ये टॉक्सिन अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा। एंड द टेटनोलाइसिन इज हीट लेबाइल टॉक्सिन, यानी जो टेटनोलाइसिन है अगर आप उसको हीट करेंगे तो वो उसकी जो सलाहियत है वो क्या हो जाएगी, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। When tetanus occurs naturally, the tetanus bacilli stay at the site of initial infection and are not generally invasive, but their toxin diffuses to affect the relevant level of
relevant level of spinal cord and then to affect the entire system, that is called generalized toxin. आपको आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो नॉर्मली जब भी टेटनस होगा तो जिस जगह के ऊपर होता है वहाँ पे इनिशियल इन्फेक्शन के केस के अंदर वहाँ पे ये स्टे करता है और नॉर्मली इन्वेसिव नहीं होता, ये अपने एरिया को छोड़ के दूसरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर नहीं जाता, बट टॉक्सिन जो डिफ्यूजेस टू अफेक्ट द रेलेवेंट लेवल ऑफ स्पाइनल कार्ड, then it is called local tetanus, and when it affects the whole entire system then it is called जनरलाइज टॉक्सिन। यानी जनरलाइज जो टेटनस है वो पूरी बॉडी के अंदर जाएगा और जो लोकल टेटनस है वो जो रेलेवेंट पार्ट स्पाइनल कार्ड है वहाँ पे जाके अपने इफेक्ट को क्या करेगा, शो करेगा। These stages include intermediate one of ascending tetanus and demonstrable in experimental animals, but the stages tend to be merged in their clinical presentation in man, and the toxin is absorbed from the site of its production in an effective focus but may be delivered via the blood to all the nerves of the body, to all nerves in the body. The heavy chain mediates attachment to gangliosides and toxin is internalized. It is then moved from the peripheral to the central nervous system by retrograde axonal transport and transsynaptic spread. The tendency for the first sign of human tetanus is to be in the head and neck is attributed to the shorter length of cranial nerves. Once the entire toxin molecule has been internalized into the presynaptic cells, the light chain is released and affects the membrane of synaptic vesicles, and this prevents the release of a neurotransmitter which is known as gamma aminobutyric acid. And the toxin exerts its effects on brain, spinal cord and muscles directly. यानी जब ये टॉक्सिन इसका रिलीज होगा तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट जो एरिया से वहाँ तक जाएगा और जब ये प्री सिनेप्टिक सेल्स तक चला जाएगा तो वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर गामा अमाइनोब्यूटाइरिक एसिड है उसके रिलीज को ये प्रिवेंट करेगा और इसके बाद ये टॉक्सिन अपने इफेक्ट्स को शो करेगा ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और मसल्स के ऊपर डायरेक्टली। और this prevents the release of neurotransmitter aminobutyric acid. Motor neurons are left under no inhibitory control and undergo sustained excitatory discharge, causing the characteristic motor spasm of tetanus. The toxin effect is directly on the spinal cord and brain and muscle activity. It means कि ये जो हमारे पास जो है ये जो टॉक्सिन है ये गामा अमाइनोब्यूटाइरिक एसिड की बेसिकली रिलीज को प्रिवेंट कर देगा और इसके बाद जो इसके इफेक्ट्स होंगे वो ब्रेन के ऊपर होंगे, स्पाइनल कार्ड के ऊपर होंगे और जो मसल्स होंगे उनके ऊपर क्या होंगे, डायरेक्टली होंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट clinical features of tetanus, cases of tetanus have been reported in which infection was apparently associated with superficial abrasion and यानी मोस्टली जो है टेटनस के केसेस जो होते हैं वो जब आपकी स्किन कहीं से रप्चर होती है तो उस केस के अंदर हमें क्या होते हैं, ये हमें शो होते हैं। And autogenic tetanus, there are many types of tetanus when we talk about its clinical features. Autogenic tetanus may be attributable to overzealous cleansing of external auditory meters with a small prick in other autogenic tetanus is basically a subtype of cephalic tetanus usually limited to the muscles and nerves of the head and neck, but can also progress to more generalized form. It usually is the result of tetanus spores that is gaining entry into the middle ear of otis media through a tympanic membrane
perforation, then it causes otogenic tetanus. And in other patients, the site of infection remain undiscovered. In those cases, the tetanus is known as cryptogenic tetanus, and cryptogenic tetanus is that type of tetanus in which we did not know the actual site of bacilli. And tetanus neonatorum follows the infection of umbilical wound of newborn infants, यानी जो हमारे पास न्यू फॉर्म infants हैं उनके अंदर भी tetanus neonatorum होगा। और ये इसकी वजह से जो हमारे पास न्यू बॉर्न चाइल्ड होते हैं उनकी क्या हो जाती है, इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। एंड पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस हैज़ बीन काज्ड ड्यू टू इम्परफेक्ट स्टेरिलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी जब हम कोई भी जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ से भी टेटनस क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल का कोई ऑपरेशन हुआ है तो अगर वो उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए वो अगर स्टेरिलाइज नहीं थे तो फिर भी जो टेटनस है वहाँ पे ट्रांसमिट होगा, और इस टेटनस को हम पोस्ट ऑपरेटिव टेटनस कहेंगे। जो हम स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट ना यूज़ करने की वजह से ये जो टेटनस होगा वो ये होगा। एंड द ऑनसेट ऑफ साइन इन सिम्टम इज़ ग्रेजुअली, इट्स मीन कि जब ये डिजीज़ इस्टेब्लिश होती है तो इसके जो साइन इन सिम्टम्स है वो बहुत स्लोली होगा, और यूजली स्टार्टिंग विद सम स्टिफनेस एंड परहैप्स पेन और नियर ए वाउंड, यानी तो इसके अंदर बॉडी की स्टिफनेस आएगी और पेन होगा जहाँ पे कोई वाउंड हुआ है। इन सम केसेस द इनिशियल कंप्लेंट ऑफ मे बी द स्टिफनेस ऑफ जॉ, यानी जो जॉ है वो क्या हो जाएंगे, सम केसेस के अंदर क्या हो जाते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। एंड पेन एंड स्टिफनेस इन द नेक एंड बैक में फॉलो, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो पेन है या वो जो स्टिफनेस है वो नेक के अंदर और जो बैक बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे भी होगी। And the stiffness spreads to involve all muscles groups. Facial spasm produce sordonic grin, and in severe cases spasm of the back muscles produce extreme arching of the back that is called opisthotones. तो as I told you कि जो ये डिजीज़ है इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स क्या होते हैं वो इन्फेक्ट होते हैं और स्पाज्म काज होता है मसल्स का। स्पाज्म का मतलब यह है कि जो भी मसल्स हमारे नॉर्मली काम करते हैं, जब कोई नॉर्मली मसल जब भी काम करते हैं तो एक जो न्यूरॉन्स होते हैं एक्साइटरी होते हैं, या अगर हम देखें तो कुछ केमिकल जो उनको एक्साइट करते हैं, कुछ उनकी एक्टिविटी को जब वो कंट्रैक्शन कर देते हैं तो वो उनको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो उनको रोकते हैं कि वो दोबारा कंट्रैक्शन ना करें। तो इसके अंदर बेसिकली एक्साइटरी स्टेट के अंदर मसल्स रहते हैं, और एक्साइटरी स्टेट के अंदर जब मसल रहेंगे तो हम इसको स्पाज्म कहेंगे, और कंटिन्यूसली वो कंट्रैक्ट करेंगे और उसकी वजह से जो कंडीशन डेवलप होगी हम उसको स्पाज्म कहते हैं। और इसमें जो पेन और स्टिफनेस है वो जो है वो एक तो नेक के अंदर आएगी और इसके साथ साथ जो बैक है वहाँ पे होगी। फिर ये जो स्टिफनेस होगी ये आपके डिफरेंट जो मसल्स बॉडी के होंगे वहाँ पे स्प्रेड करेगी और स्पेशल स्पाज्म होगा। और फिर केसेस स्पेज्म ऑफ द बैक मसल प्रोड्यूस एक्सट्रीम आर्चिंग ऑफ द बैक जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन होगा, जिसको हम opisthotones कहते हैं। द पीरियड बिटवीन injury and first sign is about 10 to 14 days. Sweating, tachycardia, and swings in the blood pressure reflects sympathetic stimulation. तो नॉर्मली जो इसकी बेसिकली हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड है वो जब होगी तो, या हम इसको इंक्यूबेशन पीरियड जो कहें वो इंजरी से फर्स्ट साइन तक जो होगा वो 10 to 14 डेज है, यानी 10 to 14 डेज तक इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे, शो होंगे। इसके साथ साथ स्वेटिंग होगी, टैकीकार्डिया होगी, और स्विंग ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस होंगी। तो ये रिफ्लेक्शन होगी कि उस इंडिविजुअल को क्लस्ट्रीडियम टेटनी ने इन्फेक्ट कर दिया। और जब हम इसकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस की बात करते हैं तो फिर Gram spears of the wound excrete and any necrotic material may show the typical drumstick bacilli, but this is not invariably so. This only provides presenting evidence as other organism that is a bulk
क्लस्ट्रीडियम टेटनाई हैव टर्मिनल स्पोर्स। इसमें कि जब हमने डायग्नोसिस करनी है तो फिर उसके अंदर एक जो वहाँ पे हमारा जो वाउंड है जिसके थ्रू ये मोस्टली पेनिट्रेट करते हैं बॉडी के अंदर, तो उस वाउंड को जो नेक्रोटिक मटेरियल होगा हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। और उसमें से अगर हमें जो है टर्मिनल स्पोर्स वाले बेसिलाई मिलें तो वो बेसिकली हमें एक जो है आइडिया देते हैं कि वो जो है ये क्लस्ट्रीडियम टेटनाई हो सकती है। लेकिन नॉर्मली देयर आर मेनी अदर बेसिलाई जिनके अंदर जो स्पोर्स होते हैं वो टर्मिनल स्पोर्स उनके अंदर मौजूद होते हैं, तो ये एग्जैक्ट आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं देता। लेकिन जनरली जब आप ग्राम स्मीयर बाउंड एक्सवेट का करेंगे और या न्यूक्लियोटिक मटेरियल लेंगे तो फिर ये आपको एक आइडिया देंगे कि यहाँ पे क्लस्ट्रीडियम टेटनाई हो सकते हैं। सिंपल लाइट माइक्रोस्कोपी इज़ ऑफन अनसक्सेसफुल एंड सिंपल लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर हम माइक्रोस्कोप के अंदर जो हमारे पास इसके सैंपल हम उसको ऑब्जर्व करके जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं क्लस्ट्रीडियम टेटनाई के उससे हम उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। तो नॉर्मली लाइट माइक्रोस्कोपी इज़ नॉट helpful. Immunofluorescence microscopy with a specific stain is possible normally, but it's generally unavailable because it is expensive. और ये जो टेक्निक है ये हम कर तो सकते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के थ्रू, लेकिन ये जो टेक्निक है ये टेक्निक पॉसिबल इसलिए नहीं है कि इसके लिए ये बहुत एक्सपेंसिव टेक्निक है। And other method that is used to diagnose Clostridium tetani is direct culture of unheated material on blood agar incubated anaerobically is often the best method of detecting Clostridium tetani। यानी इसके अंदर हम क्या करें, डायरेक्ट कल्चर और करें और जो मटेरियल हम लेंगे उसको हीट भी ना करें, ब्लड एकर के अंदर एन एरोबिकली वहाँ पे ऑक्सीजन हम प्रोवाइड ना करें, तो ये बेसिकली बेस्ट मेथड होता है जिसके थ्रू हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको डायग्नोज कर सकते हैं। There are various other tricks that exploit the organism motility and find spreading growth. Sometimes these are vitiated by overgrowth with Proteus species. Material from the wound or from a mixed sporing subculture may be heated at various temperature and for various time to exclude non-sporing bacteria. The heated specimen are then seeded on solid media and incubated anaerobically. And tetanus may be produced in mice by subcutaneous injection of an aerobic culture prepared from the wound material. So जो हम अदर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं इसको डायग्नोज करने के लिए, और एक तो यह है कि आप जो मटेरियल वाउंड से लें जो मिक्स, तो उसके अंदर हम उसको हीट अप कर दें। और हीट अप करने का पर्पस क्या होगा, हीट अप इसलिए हम करेंगे कि अगर उसके अंदर जो अदर और बैक्टीरिया हैं जो नॉन स्पोर फार्मर हैं उनकी क्या हो जाए, वो किल हो जाए। और फिर हम इनको वेरियस टेम्परेचर के ऊपर जब हीट अप करेंगे तो फिर हमारे पास हम इनको सीडेड कर दे के सोलर मीडिया के ऊपर ग्रो करवाएं और इनको इंक्यूबेशन करवाएं इन एरोबिकली, तो फिर हम इनको क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, जो हम लेबॉरेटरी डायग्नोसिस करते हैं तो हम उसके लिए डिफरेंट क्या करते हैं, हम मेथड्स यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम इनको क्या कर सकते हैं, वो डायग्नोज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। द पेशेंट रिमेन्स कॉन्शियस एंड रिक्वायर्स स्किल्ड sedation and nursing. If generalized spasm or worrying, the patient is paralyzed and ventilated until the toxin that has been taken up to be decayed। तो इसमें एक तो यह है कि जो पेशेंट है उसको अगर आप सुकून सीडेशन करवाएं, अगर उसको स्लीपनेस करवाएं तो उसके लिए बेहतर है। और अगर जो टॉक्सिन स्प्रेड हो चुका है अगर और उसकी वजह से पेशेंट को अफेक्ट हो रहा है तो फिर उसको वेंटिलेटेड किया जाए उस वक्त तक जब तक जो टॉक्सिन उसके अंदर मौजूद है वो ख़त्म ना हो जाए। और द पेशेंट इज़ गिवन 10,000 यूनिट्स ऑफ ह्यूमन टेटनस immunoglobulin in saline by slow intravenous infusion, and this is very helpful from treatment point of view। And wound is cleansed and left open with a loose pack। यानी जो वाउंड है उसको साफ़ किया जाए और उसको ओपनली छोड़ा जाए ताकि जो है वो उसको एयर वगैरह लगे, क्योंकि जो ये होते हैं इनको एनारोबिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए।
Normally, penicillin and metronidazole is given for as long as considered necessary to ensure the bacterial growth and toxin production stop. तो नॉर्मली जो हम डिजीज़ जो नॉर्मली जो हम इनको मेडिसिन देते हैं ट्रीट करने के लिए, एक तो हम पेनिसिलिन देते हैं और दूसरी हम मेट्रोनिडाज़ोल देते हैं ताकि बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो क्या हो सके, वो स्टॉप हो सके। और और जो टॉक्सिन प्रोडक्शन उसको क्या किया जाए, और टॉक्सिन प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए हम एंटी टॉक्सिन देंगे जो उस टॉक्सिन के इफेक्ट को बेसिकली क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। And when we talk about epidemiology of Clostridium tetani, tetanus bacilli may be found in human intestine, and infection seems to be derived primarily from animal feces and soil. यानी ये जो टेटनस बैसिलाई ये ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर भी पाए जाते हैं, और जो इन्फेक्शन होता है वो बेसिकली जो एनिमल फीसिस हैं वहाँ से और जो सॉइल है वहाँ से हो सकता है। द ऑर्गेनिज्म इज स्पेशली प्रेवलेंट in manure soil, and for this reason inbound through skin contaminated with soil or manure requires special attention. इसमें कि जब आपकी जो है ना बाउंड इन्फेक्शन थ्रू स्किन हो तो उसके अंदर अगर वो कंटेमिनेटेड सॉइल से या मैन्योर से हुआ तो वो फिर उसके लिए स्पेशल अटेंशन। यही वजह है कि जब भी किसी भी इंडिविजुअल की स्किन रप्चर होती है या कि जब पे उसकी बहुत ज़्यादा ब्रेक होती है, जब स्किन ज़्यादा डैमेज होती है तो हम उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। और इसीलिए लगाते हैं कि चूँकि ये सॉइल के अंदर और जो मैन्योर है वहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो फिर उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये जब भी किसी का लग जाती है ज़्यादा बॉडी की जहाँ पे स्किन ज़्यादा डैमेज हो तो फिर हम उसको टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं। Or tetanus spores may be present in gardens. It means the spores are also present in gardens, sports fields, roads and hospitals. That why जब भी किसी इंडिविजुअल का रोड एक्सीडेंट भी होते हैं जहाँ पे स्किन डैमेज होती है तो फिर वहाँ पे भी जो एंटी टॉक्सिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं। स्पोर्स ऑफ क्लस्ट्रीडियम टेटनी एंड अदर एरोज में बी embedded in surgical catgut and other dressings, and tetanus ranks among the major fatal infections। यानी tetanus जो है वो मेजर फैटल इन्फेक्शन काज करता है, क्योंकि अगर हो गया तो मोस्टली जो इसकी मोर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब भी किसी को चांस इसका होने का होता है तो फिर एंटी टॉक्सिन जो है वो फ़ौरन दिया जाता है, क्योंकि हम एंटीबॉडीज़ का वेट नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट पैसिव इम्यूनाइजेशन करते हैं ताकि जो इंडिविजुअल है उसको जो टॉक्सिन है उसके डैमेजिंग इफेक्ट से हम क्या कर सकें, उसको बता सकें। एंड ड्यूरिंग 1980 देयर वर बिटवीन 8 lakh and 1 million deaths annually from tetanus, of which 4 lakh were due to neonatal tetanus। तो tetanus की जो डिजीज़ है 1980 के अंदर आप देख सकते हैं कि वो कितनी ज़्यादा डेंजरस थी, क्योंकि आपको पता है कि अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है हमने जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनको टू सम एक्सटेंट कंट्रोल कर लिया, लेकिन ड्यूरिंग 1918 ऑलमोस्ट 8 लाख से 10 लाख लोग जो है हर साल सिर्फ टेटनस की वजह से मार जाते थे, और उनमें से 4 लाख सिर्फ वो थे जो नियोनेटल टेटनस था। जो और नियोनेटस टेटनस जो है वो हमारे जो अम्बिकल कार्ड से हो जो चिल्ड्रंस होते हैं स्मॉल उनके अंदर होता था, और सिर्फ 10 लाख में से 4 लाख वो बच्चे थे जो न्यू बॉर्न जिनके अंदर टेटनस होता था, जिसको न्यूनेटस टेटनस कहते हैं, तो वो उनकी डेथ काज करवाता था। And when we talk about incidence, then incidence varies among mostly from country to country and inversely related to socio-economic development and standards of living, preventive medicine and wound management। तो ये जो है इसकी जो डेवलप कंट्री है वहाँ पे द इंसिडेंस जो है बेसिकली कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, इन्वर्स रिलेटेड है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर आप सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे इसके चांस कम होंगे, और स्टैंडर्ड्स जहाँ पे लाइफ के ज़्यादा ठीक हैं वहाँ पे भी ये डिजीज़ कम होगी। फिर प्रिवेंटिव मेडिसिन आप कौन सी यूज़ करते हो, बाउंड की मैनेजमेंट कैसी है किसी भी कंट्री के अंदर जब लग जाती है तो उसके अंदर पीपल का रिस्पांस बाउंड के अंदर कैसा होगा, किस तरीके से बाउंड को ट्रीट किया जाता है, कितनी ड्यूरेशन के बाद उसको सीरियस लेके वो उसकी मैनेजमेंट करते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ड्यू टू विच इंसिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री इन द वर्ल्ड।
In developed country, reported incident of adult and childhood tetanus is low. ये मैं बताया आपको कि जो डेवलप्ड कंट्री वहाँ पे इसकी इंसिडेंस क्या है, कम है, और जो चाइल्डहुड टेटस वो भी कम है, क्योंकि वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे ऑपरेशंस के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्टीलाइज यूज़ किए जाते हैं। स्टीलाइज जितने ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे तो पोर जो है ना ऑपरेशनल टेटस नहीं होगा, क्योंकि जो न्यू बॉर्न है उनके अंदर भी जो उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनकी डिलीवरी करवाई जाती है वो प्रॉपर मैनेजमेंट के रूल्स के मुताबिक की जाती है, उसके अंदर साइंस के असूलों को मद्देनज़र रखा जाता है। इसी तरह जो उनकी वाउंड मैनेजमेंट है वो भी ठीक है, और वहाँ पे जो सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जितनी ज़्यादा सोशल इकनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री के अंदर होती है उसकी वजह से लाइफ के स्टैंडर्ड रेज होते हैं, और लाइफ के स्टैंडर्ड जब रेज होंगे तो डिजीज़ की जो वो डिजीज़ फिर जो है उस कंट्री के अंदर क्या होगी, वो कम होगी। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड एक चीज़ रह गई है, fertility rates may exceed 50% and neonatal tetanus carries a very high mortality rate. Case fatality rates can be gradually reduced to less than 10% by modern methods of treatment in specialist centers. Unfortunately, such expensive skilled help is available for only a small population of hospitals. Underprivileged people in countries where poorly developed or expensive medical services are at greatest risk are least likely to receive sophisticated assistance. 80% of the deaths occur in Africa and Southeast Asia, and a maternal vaccination campaign mounted by the United Nations Children Fund during the past 15 years has reduced the incidence of neonatal tetanus by 50%. It's mean जो इसका रेट है फर्टिलिटी का वो जो है जो हमारे पास 50% एक्सीड करता है, और न्यूनेटल के अंदर वो रेट बहुत ज़्यादा है। और ये जो अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो फिर इसकी वजह से जो मोर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। यही वजह है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो एक तो मदर की भी वैक्सीनेशन करते हैं, दूसरा वो जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट जो करते हैं वो हाईली प्रिविलेज्ड होती है और हाईली सेफ़ होगी, तो उसकी वजह से इसके जो ट्रांसमिशन की चांसेस हैं वो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर बहुत कम है। लेकिन जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, या जो वहाँ पे हेल्थ सेक्टर्स है वहाँ पे इतनी ज़्यादा जीडीपी की जो है ना वो ग्रोथ उसके ऊपर नहीं, या वहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा हेल्थ के ऊपर नहीं लगाया जाता। तो हेल्थ के ऊपर अगर आप पैसा नहीं लगाएंगे, ट्रीटमेंट अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी, वैक्सीनेशन आपकी मदद की नहीं होगी, तो फिर ये जो है ये ज़्यादा होगी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। And when we talk about prevention and control of Clostridium tetani, then prompt and adequate wound and proper surgical debridement of wound are of paramount importance. There is an increased risk that tetanus spores may be germinate in a wound if cleansing is delayed and if sepsis developed. It's mean कि अगर हमने इसको जो है इनकी प्रॉपर जो है हमने इनको ट्रीट करना है, तो फिर एक तो ये कि इम्यूनाइजेशन करें, मैस एजुकेशन करें, प्रॉपर हाइजीन करें, वाउंड्स ट्रीटमेंट करें। अगर हम इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो एक तो यह है कि जो आपकी वाउंड ट्रीटमेंट है उसको ठीक करें, दैन देयर इज़ इंक्रीज रिस्क, और कि अगर आप उसकी वाउंड ट्रीटमेंट ठीक नहीं करते तो जो स्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करते हैं वाउंड के अंदर, क्योंकि अगर आप जितने ज़्यादा लेट करते जाएंगे क्लींसिंग बाउंड की तो वो उसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्लीन सुपरफिशियल बाउंड्स दैट रिसीव प्रॉम्प्ट अटेंशन may not require specific protection against tetanus, and it is unreasonable to insist that every small prick or abrasion requires protection with antitoxin or antibiotic. And a routine practice should take account of the local incidence of the tetanus and individual circumstances of the case. It is wise to recommend specific prophylaxis for a non-immunized patient with a deep wound puncture or staph wound ragged lag laceration, a wound with much bruising and any devitalized tissue, a wound that is already septic or bite
or other type of wound that is likely to be heavily contaminated shows an approach that reflects current thinking in different developed countries. तो जहाँ पे developed countries हैं वहाँ पे routine practices जो हैं वो बहुत ज़्यादा important है कि आप किस तरह wound treatment करते हैं, और जो developed countries है वहाँ पे जो स्मॉल से स्मॉल आपका वाउंड होगा उसको प्रॉपर अटेंशन दी जाती है, और उस अटेंशन की वजह से जो इसके ट्रांसमिशन की चांस है वो कम है. द need for passive immunization is avoided if the patient is known to be properly immunized against tetanus. यानी अगर कोई इंडिविजुअल टेटनस के अगेंस्ट ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है तो फिर उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन नहीं की जाती. पैसिव इम्यूनाइजेशन मोस्टली हम तब करते हैं. पैसे तो ये है कि इम्यूनाइजेशन आप पहले से कर दें पॉपुलेशन की. जो डेवलप कंट्रीज हैं वो प्रॉपर जो डिफरेंट डेंजरस डिजीजेज होते हैं उनके अगेंस्ट वो इम्यूनाइजेशन करते हैं. इम्यूनाइजेशन इज बेसिकली प्रोफाइलैटिक मेजर दैट इज यूज्ड बिफोर द अकरेंस ऑफ अ डिजीज दैट डेवलप बेसिकली इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज. तो डिफरेंट वर्ल्ड्स के जो हमारे पास डेवलप कंट्रीज हैं वो इम्यूनाइजेशन करते हैं, और वो इस बात का वेट नहीं करते कि किसी इंडिविजुअल को हो गया है तो आप वहाँ पे उसको ट्रीट करें, बल्कि वहाँ पे इम्यूनाइजेशन की जाती है और उसमें एंटीटॉक्सिन दिया जाता है. ये और द नीड फॉर पैसिव immunization is divided if the patient is known to be properly immunized against tetanus. A patient may be regarded as immune for 6 months after the first 2 injections, or for 10 years after a planned course of 3 injections of जो है ना tetanus toxoid. Tetanus antitoxin should not be given to immune patients, but their active immunity may be enhanced when necessary by giving a dose of tetanus toxoid at the time of injury if the circumstances justify it. A patient is considered non-immune if there is no history of having had an injection of tetanus toxoid, or if only one injection has been given. Take care. A patient may recall having had a tetanus shot, but this may have been a previous dose of antitoxin for passive protection. And if more than 6 months have been elapsed after a course of 2 injections, or more than 10 years after a full primary course of 3 injections of absorbed toxoid, the patient should be regarded as non-immune. And the patient is non-immune if more than 2 to 3 weeks have elapsed since the previous injection of antitoxin, or more than 6 to 8 weeks in case of homologous antitoxin. And passive immunization with antitoxin, HTIG, hemoglobus antitoxin, is available for passive protection and now supersedes equine antitoxin, which has associated with occasional adverse effect. However, equine anti-serum should not be prematurely discharged in countries that do not have HTIG. And another technique that is called combined active passive immunization. It's also used into in different countries of the world to immune their population from Clostridium tetani. And so we can say that in the control of prevention control of Clostridium tetani, immunization of population is very important, and due to which the rate of Clostridium tetani is very low in developed countries, because their population disease routine immunization for different diseases. That why they have low incidence of Clostridium tetani in these countries as compared to less developed countries where immunization is not given for each and every disease. And mass education is very important to control Clostridium tetani in particular country, and the developed countries of the world have mass education for their populations, due to which they know the route transmission of Clostridium tetani, and that is very important to control and prevention of this Clostridium tetani. Proper hygiene is very important, mostly wound management. From wound management point of view, तो जितने ज़्यादा हम wounds की treatment करेंगे उतना ज़्यादा chance है कि वो आपको जो Clostridium tetani के जाने के चांस है वो कहीं कम है. इसी तरह जो डिफरेंट वर्ल्ड की कंट्रीज़ का रिस्पॉन्स है, वो जो वाउंड्स हैं उनको वो स्मॉल से स्मॉल वाउंड को भी अटेंशन देते हैं, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ नहीं हैं वहाँ पे चूँकि हेल्थ सेक्टर के अंदर इतने ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, तो वो नॉर्मली वाउंड ट्रीटमेंट इतनी प्रॉपर नहीं करते. अगर वाउंड ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो फिर इसके इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ Clostridium tetani.